friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. I welcome you all for this issue-based learning. In today's session, we are discussing about new education policy 2020. Education is a backbone for any country. So especially for a country which is at the, you can say, demographic dividend stage, it is very crucial that we should have a proper plan for our young ones so that the country will have a future progress. So I'm sure you know that you can say by some round, you can say half of the next. So I'm sure you are aware about that by 2050 onwards, we will become possibly the world's most populous country, number one. And number two, we'll have large number of young people, you can say, staying with us. Now, these young people have to be trained in a right manner. So to get a right advantage of demographic dividend, the education has to be the backbone, and that's what this new education policy is trying to achieve. Okay, so let's not you can say get into anything you can say political aspect of this. Let's try to remain neutral and see whether this kind of policy is very useful for a country. Number one, any policy will always set a goal and will set a kind of structure. Okay, we'll have to analyze whether in our country such kind of structure will work or not. Okay, number one. Number two, whether this kind of capabilities are possible for us or not, and whether government is ready possibly with respect to financial aspect to support on this front. So those kind of parameters is what we'll try and understand. So primarily this national education policy aiming for transformational reform in school and higher educational institution. This is what the game is, and here the objective was whether Mr. Modi government will be in a position to implement this in a right manner or not. So some people are saying that this is a moral moment for our country. Now what is this moral moment? Okay, this is a moral act in USA. This moral, you can say, act in USA has transformed entire USA with respect to land acquisition, with respect to distribution of the land, and especially the changes in the college education. And that college education changes what we have seen in USA. Today, what we can identify the kind of higher education flourishing in USA, which is demanding and at the same time which is expected by large number of people, anyone, whether it is China or India or anyone, people are really interested to go to America for study purpose. So possibly, can India do that? Can India, you can say, become similar kind of scenario for higher education institution? At the same time, can we do it for our own people? That's a big question we have to understand. So this NEP 2020 replaces, you can say, 34-year-old national education policy which is of 1986. दोस्तों, this national policy on education of 1986 को बाद में थोड़ा सा modify करके पीवी नरसिम्हा राव लेकर आए थे, but this is our 21st century का पहला education policy. Yes, and thereby it requires good amount of understanding about this. Okay, and this policy is aligning itself to 2030 agenda of sustainable development goal. दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि देश, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के साथ, ठीक है, कदम पे कदम मिलाकर चले, उसका तालमेल सही हो, और वो जो बड़े बड़े गोल अलग अलग कंट्रीज और पूरा वर्ल्ड एक अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को हम भी मदद करें, उस गोल को आगे बढ़ाने में हम मदद करें. और एनीवे वी आर पॉसिबल लीडर सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो दोस्तों, अगर हम इसके बारे में बात करें, द एम ऑफ दिस न्यू पॉलिसी इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल to the secondary level with 100% GER in the school education by 2030. So this is a big aim. ठीक है, this is called gross enrollment ratio. That means roughly we would like to provide, you can say, all children this education part. दोस्तों, भारत में वैसे भी right to education है, yes or no, which is 6 to 14 years of age के बच्चों के लिए we are providing free and compulsory education. हालांकि हम ये 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या रेट हम अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है. वी आर करंटली एट सब अराउंड 65-68% के आजू बाजू. नाउ वी वुड लाइक टू इंक्रीज टू 100%. दैट्स अ वंडरफुल एम, ठीक है. अब ये जो एम है, उस एम के साथ साथ एक और बड़ा एम है दैट वी वुड लाइक टू बिकम वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, ठीक है. अ सोसाइटी
which has largest population on this earth, ठीक है, a country with largest population must have such kind of aim कि हमारे यूथ को ये बताना है कि दोस्त, दुनिया तुम्हारे नॉलेज के ऊपर चलने वाली है, तुम्हारी स्किल के ऊपर चलने वाली है. मेक श्योर दैट दिस सिस्टम इज सपोर्टिंग यू फॉर दैट. इनफैक्ट भारत के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया में ऐसे सिस्टम नहीं है, इसलिए ब्रेन ड्रेन. ठीक है दोस्तों, भारत में एजुकेशन पॉलिसी होती नहीं थी, तो 70s, 80s, 90s के ज़माने में बहुत सारे यंग पॉपुलेशन वर लिविंग इंडिया एंड दे वर गोइंग आउटसाइड इंडिया, लिविंग इन यूएसए और एनी अदर सच काइंड ऑफ कंट्रीज. सो नाउ वी वुड लाइक टू बिकम ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर. ठीक है दोस्तों, ये ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के लिए हमारे पास काबिलियत है क्या, हमारे पास एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, हमारे पास इनफ एक ऐसे नंबर है क्या. उसी पॉलिसी, इसी सब परेशानियों को ये पॉलिसी एक तरीके से लूपहोल बंद करने की कोशिश कर रहा है. अल्टीमेटली वी वुड लाइक टू डेवलप यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट. दोस्तों, what I've seen in my, you can say, career, that it is really possible for smaller group where you can identify unique capabilities of each student. Yes, but when it comes to a bigger system, है ना, बड़ी सिस्टम के बारे में हम जब बात करते हैं, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी है ना, अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और एक बच्चा कोई छोटे कोचिंग क्लास में पढ़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे अंतर है. कोचिंग क्लास में इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द कैपेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड. सिमिलरली लेट्स से स्पोर्ट्स के अंदर जब एक कोच होता है, कोच के पास जाते हैं तो एक कैपेबिलिटी आइडेंटिफाई हो सकती है, बट इन अ बिगर सिस्टम that turns out to be very difficult. ठीक है, दैट इज वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई किस तरीके से ये पॉलिसी इसके ऊपर काम करेगी. ये पॉलिसी के महत्वपूर्ण पिलर है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल. एक्सेस का फैक्टर बहुत सारा है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इट इज ऑल्सो अबाउट, यू कैन से, किस मीडियम ऑफ लैंग्वेज में आपसे बातें करी जा रही है. सो एक्सेस ऑफ एजुकेशन इन योर ओन मदर टंग will make a difference दोस्तों. ठीक है, और ये हमने यहाँ पे कोशिश करी है. इक्विटी है, whether it is equitable, it is for everyone. ठीक है, can this education system to be provided to all, whether it is poor, कोई रिमोट गांव में बैठा है या एक बड़े शहर बॉम्बे या दिल्ली में बैठा है, उन सबको हम सेम तरीके का एजुकेशन और एक इक्विटी वाला डिस्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे क्या. क्वालिटी के बारे में बड़ा सवाल है. ठीक है, क्वालिटी इंडिया में कुछ लिमिटेड संस्थाओं के पास है. आईआईटी, आईआईएम, एनएलयूज, इन्हीं संस्थाओं के पास क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन करी जाती है, बट वी वांट क्वालिटी टू बी डेवलप्ड इवन थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. यस, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस. सो ये क्वालिटी को भी एक बढ़ावा देना पड़ेगा, एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी. अफोर्डेबिलिटी, I have a big doubt on the policies not talking on this front. Affordability. ठीक है दोस्तों, भारत में एजुकेशन इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि एक तरफ गवर्नमेंट एजुकेशन है जो बहुत अफोर्डेबल है और एक तरफ प्राइवेट एजुकेशन है जो जरा भी अफोर्डेबल नहीं है. ये जो प्राइवेट स्कूलों का अनअफोर्डेबल सिनारियो डेवलप हो चुका है. ठीक है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, एजुकेशन काफी अनअफोर्डेबल हो गया है. ठीक है, अब उसकी अफोर्डेबिलिटी कैसे क्रिएट करी जाए. ठीक है, दैट इज वेयर द बिग, you can say, question which is coming up. ठीक है, मेरा मानना है that affordability with IIM, IIT and NLUs can be, you can say, develop once, you can say, newer and newer kind of education programs are to be introduced. Yes, अगर अच्छे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा लोग काम कर पाएंगे, तो शायद उस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर यूज़ करके they will be in a position to give, you can say, economy of scale possibly. Yes or no? तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना मतलब IIM की फीस करीबन 20-22 लाख के आजू बाजू हो रही है, तो it turns out to be really difficult. Yes, ठीक है. सिमिलरली अकाउंटेबिलिटी, कौन अकाउंटेबल है. यस, ठीक है. सो दोस्तों, व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एक तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, वाइल इन द स्कूल अकाउंटेबिलिटी का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है. इनफैक्ट आज कोरोना की वजह से द स्कूल सिस्टम इज हैपनिंग, यू कैन से, इन एवरीवन्स हाउस. तो पेरेंट्स उस बात को देखते हैं और वहाँ से अकाउंटेबिलिटी की डेवलपमेंट तो काफ़ी अच्छी हो रही है, बट स्टिल, ठीक है, दिस इज लॉन्ग वे टू गो एज व्हाट आई बिलीव. ओके, सो ओवरऑल हम बात करें, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आए MHRD, ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेवल पे लोगों से, एक ऐसे कंसल्ट किया था, बहुत सारे लोगों से बातें करी थी. दे वर आस्क्ड
there are suggestions, 2 lakh suggestions from 2.5 lakh gram panchayats, 6600 blocks, 6000 ULB and 676 districts provided this. So ये consultation process काफी लंबा भी चला था, and finally we have, you can say, this particular, you can say, committee which is Dr. K. Kasturi Rangan committee. Kasturi Rangan साहब is a Padma Vibhushan, he was ex ISRO chairman, उन्होंने ये, you can say, submit करा है दोस्तों, और ये कैबिनेट ने अप्रूवल भी कर दिया। उसके पहले, है ना, स्मृति ईरानी जब एचआरडी मिनिस्टर थी तब ये टीएसआर सुब्रमण्यम का कमेटी बनाया गया था, एंड नाउ लेटर ऑन इट वाज चेंज टू डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, एंड वी हैव अ वंडरफुल, यू कैन से, पॉलिसी व्हिच केम इनटू द, यू कैन से, आइडिया। सो व्हाट इज द समरी ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में शायद ये सवाल भी पैदा हो सकता है कि सर ये कब से इंप्लीमेंट होगा? दोस्तों ये पॉलिसी है, अब ये पॉलिसी के डिसीजंस स्टेप बाय स्टेप लिए जाएंगे। सो द बिग स्टफ 5+3+3+4 ये कब से लागू पड़ेगा? So we'll have to wait and watch for executive order for this. Yes or no? This is a policy framework. ये सजेशन है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट बोलते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। Yes or no? कब से करेंगे, ये सिस्टम कैसे डेवलप होगी, स्कूलों की सिस्टम में क्या बदलाव लाएगा, ये सब का प्लानिंग करते हुए इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। Yes or no? So national education policy 2020 will bring some around 2 crore out of school children back to the mainstream. ठीक है दोस्तों, इसमें इन्होंने कोरोना का इम्पैक्ट देखा नहीं है। यस नो? सो ये जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात हो रही है उसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ये प्री कोरोना के दुनिया का बात है। यस नो? पोस्ट कोरोना का इसमें इनकॉर्पोरेशन नहीं दिख रहा है। यस नो? जब पोस्ट कोरोना फैक्टर इसमें इंक्लूड करा जाएगा, सो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बदलाव इस एजुकेशन पॉलिसी में लाना पड़ेगा। यस नो? ये जो बड़े बड़े एम हमने रखे हैं वो पोस्ट कोरोना के दुनिया में तो काफी बदल जाएंगे। ठीक है, क्या एम्फेसिस है? एम्फेसिस इज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम्स इन द स्कूल। सो दैट मीन्स अभी तक जो स्कूलों में जो सिस्टम चल रही थी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, ठीक है, और उसके अलावा बाकी की जो भी चीजें थी, ठीक है, वो सिर्फ करण जौहर की स्कूलों में लगता था, बाकी तो नहीं लगता था। कि करण जौहर की स्कूलों में लगता था एकेडमिक तो ज़्यादा फोकस है ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर के ऊपर ही ध्यान होता था। तो अब ये लोग बोलते हैं एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलर और वोकेशनल, इन सब का मिक्स होगा। एंड व्हाट आई बिलीव इज एनी एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, मस्ट सपोर्ट वोकेशनल स्ट्रीम्स। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पे अभी तक स्कूलों में ये वोकेशनल स्ट्रीम का अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। ठीक है, इनफैक्ट when I talk to large number of young children, ठीक है, what I realize that this young children when they are told कि those will you do a small course on plumbing, will you do a small course on electric wiring, ठीक है, then उस बंदे को लगता है कि अरे क्या मैं फ्यूचर में ऐसा थोड़ी काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग को इतना बढ़ावा और इज्जत दी नहीं जाती है। ठीक है, चाइना देख लीजिए दोस्तों, चाइना में वोकेशनल ट्रेनिंग, अमेरिका, कनाडा, सब जगह पे वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, वहाँ पे कॉलेज बोलते हैं, जो कॉलेज होती है विच इज़ यू कैन से वोकेशनल ट्रेनिंग वाली होती है, और जो यूनिवर्सिटी होती है वो एकेडमिक वाली है। तो उन दोनों का एक थोड़ा सा यू कैन से सेपरेशन है, और पर आवर रफली सब लोगों का सैलरी सेम है। अपने यहाँ पे अभी भी हम वो ब्रिटिशर विचार वाला एजुकेशन सिस्टम पे चलते हैं, और ये ब्रिटिशर विचार वाला जो एजुकेशन सिस्टम पे हम जो चलते हैं, उस सिस्टम में हमारे सामने अभी भी वो डिग्री है ना, उसका वैल्यू बहुत बड़ा है। सो दोस्तों, हमें ये धीरे धीरे लोगों के दिमाग में डालना पड़ेगा कि ये डिग्री से कहीं गुना ज़्यादा आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। यस और नो? सो वोकेशनल एजुकेशन दे आर थिंकिंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विथ इंटर्नशिप, ठीक है, विच इज़ अ वंडरफुल आइडिया। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, बट दोस्तों इंटर्नशिप हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चलती है, ठीक है, पर कितने ऑर्गेनाइजेशंस रेडी है उन बच्चों को लेने के लिए? दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज दोस्तों। ठीक है, हमें जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके प्रति भी एक अच्छे से सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो ये काम होने नहीं वाला। मदर टंग विच इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, मैं इस बात का सहमति हूं कि भाई लोगों को, यंग बच्चों को जो भी एजुकेशन देना है उसकी मदर टंग में देना चाहिए। वी शुड नॉट रियली बॉदर टू मच अबाउट कि इंग्लिश लैंग्वेज में देना चाहिए। दोस्तों, आप जो इंडिया में जो अंग्रेजी मीडियम का दुनिया चल रहा है, और जो एक वर्निकुलर मीडियम के जो बच्चे हैं वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, ऐसा लगता है, और इन रियलिटी ऐसा होता भी है। ठीक
ठीक है। आई माई सेल्फ हैव सीन दिस, है ना, मैंने खुद देखा है कि मेरे आजू बाजू जो दुनिया है, और मैं इतने सारे बच्चों को रेगुलरली पढ़ाता हूँ, तो मैंने ये ज़रूर देखा है कि ये प्रॉब्लम तो ज़रूर है, ठीक है। सो टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन द मदर टंग और अ रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, कितने लोग लेना चाहेंगे, ये सवाल है दोस्तों, ठीक है। बात यह है कि आपने पॉलिसी बना दी, व्हाट अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पेरेंट्स, माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी एक इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा वैल्यू करती है और जो दूसरा कोई लैंग्वेज बोलने वाले को इतना वैल्यू देती नहीं है, इतनी बड़ी पगार मिलती नहीं है, इकोनॉमी सिस्टम इंग्लिश वाली हो चुकी है, तो ये मदर टंग वाला जो पार्ट है उसका कैसे डेवलपमेंट कैसे होगा, असेसमेंट, है ना। ये बहुत मज़ेदार सी दुनिया है। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण कहानी बनेगी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, कि हमारा जो रिपोर्ट कार्ड आएगा, ठीक है, उसको 360 डिग्री होलिस्टिक वे में आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन किस बेसिस पे मिलेगा। मुझे डीयू में एडमिशन चाहिए 12वीं के बाद, ठीक है, मेरे मार्क्स देखे जाएंगे या मेरा 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड देखा जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये जो परेशानियां हैं, है ना, प्रैक्टिकल परेशानियां हैं, उसको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे ये जो कैसे मतलब क्या बोलते हैं पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस है, ठीक है, उन पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस को हमें कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये सुनो, ये पॉकेट ऑफ एक्सेलेंस ही तो है जिसकी वजह से आप और मैं भागा दौड़ी करते हैं कि हमें पढ़ना है एनएलयू में, हमें पढ़ना है आईआईएम में, हमें पढ़ना है आईआईटी में। ये सुनो दोस्तों, इसके पीछे हमारे जो बड़े बड़े सपने हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो चल रही है, उस इंडस्ट्रीज का क्या करेंगे विद दिस 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ठीक है। लर्निंग आउटकम, ये ट्रैकिंग होगी स्टूडेंट की प्रोग्रेस की, ठीक है, बराबर है। इट इज़ नॉट लाइक कि एक दिन पे उसका परफॉर्मेंस दे दिया, वैसा नहीं होगा। इट्स अ ट्रैकिंग पार्ट ऑफ इट, ठीक है। से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। मोर एंड मोर नंबर ऑफ सीट्स विल बी एडेड, 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन हायर एजुकेशन। अच्छी बात है, आपके जो बच्चे होंगे उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जितनी लड़ाई आपने लड़ी उतनी लड़ाई उनको नहीं लड़नी पड़ेगी। जैसे हमारे ज़माने में हमने लड़ाई लड़ी थी, ये सुनो, तो आपके ज़माने में आपको लड़ाई थोड़ी कम लड़नी पड़ रही है, ठीक है, आपके बच्चों को थोड़ी और कम लड़नी पड़ेगी। सो ओवरऑल ये 3.5 करोड़ सीट बढ़ाने के लिए तो आइडियली प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम ही लानी पड़ेगी। तो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में अफोर्डेबिलिटी कैसे मैनेज करेंगे, एनीवे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। सो ये बहुत अच्छा मुद्दा है। हायर एजुकेशन करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने पिछले कुछ सालों में मैंने ये ज़रूर देखा कि ये जो नए लिबरल स्टडीज़ वाले जो इंस्टीट्यूट्स आए, उन्होंने एजुकेशन की कहानी चेंज कर दी। और इस चेंज ऑफ एजुकेशन सिस्टम की वजह से मेरा मानना है कि काफ़ी बड़ा बदलाव आया, ठीक है, बच्चों के अपब्रिंगिंग के अंदर, बच्चों के थॉट प्रोसेस के अंदर, बच्चों को अपनी कैपेबिलिटी को भांप कर उसको सही तरीके से अप्लाई करने के अंदर, ठीक है। सो दोस्तों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबली, ठीक है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव होना है तो आपको मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट रखना पड़ेगा, तो ताकि आप स्पेन से कुछ बच्चों को बुला सकते हो, ऑस्ट्रेलिया से बच्चों को बुला सकते हो, चाइना से बच्चों को बुला सकते हो, एंड यू विल बिकम पॉसिबली विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आप ये बन सकते हैं। तो इसलिए वो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट चाहिए, बिकॉज एजुकेशन डजंट गो इन वन क्लोज्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि एक बार घुस गए कंपलसरी आपको उसके अंदर टिके ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर्स, देयर आर लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज व्हिच पीपल हैव, एंड पीपल वुड लाइक टू टेक एजुकेशन एज अ सेकंड स्टेप, एंड पॉसिबली देयर फर्स्ट स्टेप वुड बी समथिंग एल्स। तो प्लान बी भी उनके लिए रेडी रहना पड़ेगा, ये सुनो, ठीक है। अच्छा, फिर क्रेडिट्स, है ना, पूरा एजुकेशन सिस्टम मार्क्स और ईयर की जगह पे क्रेडिट्स में चलेगा, ठीक है, ताकि लोग अपनी क्रेडिट ट्रांसफर कर पाएंगे। सो यू आर स्टडिंग इन कॉलेज ए एंड टुमारो यू वुड लाइक टू शिफ्ट टू कॉलेज बी, सो यू टेक योर क्रेडिट देयर, ठीक है। तो आपको वापस जीरो से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। और एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन डेवलप करने की बात है, ताकि इंडिया में एक अच्छा रिसर्च डेवलपमेंट हो सके। दोस्तों दिस इज अ नीड ऑफ द आवर। भारत में रिसर्च की एक्टिविटी, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हो नहीं रही है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे जो आईआईएम, आईआईटी, आईआईएससीज, ठीक है, और ऐसे जो अच्छे इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च नहीं कर रहे हैं, बट ये रिसर्च का माइंडसेट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड
टू यंग चिल्ड्रन एट अ वेरी यंग एज, ठीक है, एट द एज ऑफ 22-23, ठीक है, और वो धीरे धीरे डेवलप करे, वैसा नहीं होता। इनफैक्ट भारत में रिसर्च में जाने वाले बच्चे ऐसे माने जाते हैं दैट दे आर फेल्योर इन द ट्रेडिशनल सिस्टम, ठीक है, तो वो फेल्योर माने जाते हैं, और वही फेल वाले लोग जो अच्छी कॉलेज में नहीं जा पाए वो रिसर्च में जाते हैं। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज, ठीक है दोस्तों। ये रिसर्च फाउंडेशन शुड डेवलप अ वंडरफुल सिस्टम जहां पे रिसर्च is a priority or research should be sought after career by the young students। ये आइडिया डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में रेगुलेशंस के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, वी शुड हैव लॉट ऑफ लाइट रेगुलेशंस, ठीक है। सो एक तरीके से बोलते हैं ना, ये कैन से दिस प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और कैन से जिसको उदारीकरण बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। सो यहाँ पे बात हो रही है उसी लिबरलाइजेशन की। एजुकेशन को लिबरल बनाना चाहिए। जो भी कॉलेज करीब 15-16 साल से चल रही है, उसको रेगुलेशन का रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाना है, ठीक है, उसको पता है वो सिस्टम कैसे डेवलप कर रहा है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर हमें जो प्रॉफिट मेकिंग लोग हैं उसको दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर ये जितने भी कॉलेजेस है ये एक ट्रस्ट के अंदर चलती है तो प्रॉफिट मोटिव तो होता नहीं है। एग्रीड, नहीं है, सब ट्रस्ट में चलती है, सोसाइटी में चलती है, प्रॉफिट मोटिव होता नहीं है, पर वो सिर्फ ऑन पेपर, ठीक है। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत सारा कैपिटेशन फी चार्ज करती है, तो भैया ये तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर डंडा तो लगाना पड़ेगा। एक रेगुलेटर होगा, ऑब्वियसली एक दिस लीगल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन का रेगुलेटर अलग होगा, बाकी सबका रेगुलेटर एक होना चाहिए। ऑब्वियस है प्रोफेशनल कोर्सेज अलग होने चाहिए और बाकी कोर्सेज को अलग रखना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स अपने मुताबिक चलते हैं, वो अलग होना चाहिए। एफिलिएशन सिस्टम, ठीक है, विल बी फेस्ड आउट कि आपको कंपल्सरीली कोई एक पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, ऑटोनोमस कॉलेज होनी चाहिए। मुंबई में वी हैव यू कैन से सेंट जेवियर्स, यू कैन से जय हिंद एंड ये सब कॉलेजेस है, एचआर कॉलेज है जो ऑटोनोमस कॉलेजेस है, दे रन देयर ओन करिकुलम विच शुड बी देयर। Yes, why not? It is available for everyone. ठीक है, there has to be increased use of technology with equity. Yes, दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। टेक्नोलॉजी इज अ गेम चेंजर फॉर एनी एजुकेशन सिस्टम। यस और नो, और इसीलिए ये एजुकेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी के द्वारा एक से कनेक्ट करके इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। एक नया फोरम क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, वेयर पीपल विल बी इन अ पोजीशन टू डिस्कस मेनी इश्यूज एंड हाउ this technology to be used for transformation of education। नए फंड क्रिएट करे जाएंगे, ठीक है, wherein gender inclusion fund, special education zone for disadvantaged region and group। so एक तरीके से देखें तो यहाँ पे नए फंड की जगह पे ऐसा बोला जा सकता था कि क्लस्टर अप्रोच जो लगाना चाहिए। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर रियली अवेयर नाउ आफ्टर दिस कोरोना दैट क्लस्टर अप्रोच, जहां जरूरत है वहां टारगेट करिए, जहां जरूरत नहीं है वो अपने आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो उसको करना चाहिए। सो न्यू पॉलिसी promotes multilingualism in both school and against higher education institution, ठीक है। सो यहाँ पे लैंग्वेज विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात होती थी। दोस्तों मल्टीलिंगुअलिज्म डेवलप करना इस बड़ा एक ऐसे नेक विचार है, पर ये मुझे बताइए कि हमारा जो इंजीनियरिंग का सिस्टम है उस इंजीनियरिंग में कौन सी किताबें आपकी हिंदी भाषा में लिखी गई है, गुजराती भाषा में लिखी गई है, मराठी भाषा में लिखी गई है? आर देयर एनी इनसे बुक्स अवेलेबल? मेडिकल की किताबें अवेलेबल है क्या उस भाषा में? ठीक है, आपकी लॉ की किताबें अवेलेबल है क्या उस भाषा में? ठीक है, आप किस बेसिस के ऊपर मल्टीलिंगुअलिज्म डेवलप करने की कोशिश करो? सिर्फ इसी चीज के लिए कि बच्चों को एक लैंग्वेज का अलग से कोर्स मिल जाए? I think this is really a very challenging scenario. ठीक है, there are national institute for Pali, Persian, Prakrit, ठीक है, Indian Institute of Translation and Interpretation to be set up. Now that is to be done in a wonderful manner. दोस्तों ये ज़रूरी है, ठीक है। आज के ज़माने में जो हमें मल्टीलिंगुअलिज्म है, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज इज पॉसिबली अ टूल विच ओपन्स विंडोज फॉर लॉट ऑफ नॉलेज। ठीक है, अगर आपको
पर्शियन लैंग्वेज पता है, ठीक है, फारसी लैंग्वेज पता है, तो आपको उस कल्चर में क्या चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। दोस्तों आपको जर्मन लैंग्वेज पता है तो आपका इंजीनियरिंग का अंडरस्टैंडिंग का लेवल काफ़ी अच्छा बन सकता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल इन जर्मन लैंग्वेज प्राइमरली फॉर इंजीनियरिंग फ्रंट, ठीक है। सो दोस्तों आपके वहाँ का माइंडसेट, वहाँ के लोगों का विचार, वहाँ के थॉट प्रोसेस वो आपके दिमाग में आएंगे और यही एजुकेशन का बड़ा एम होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ये बात करने के लिए कि ये जो नया चेंज आया 10+2 से इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है, टू द न्यू सिस्टम विच इज कॉल्ड 5+3+3+4, ठीक है, विच इज वेयर द इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसा माना जाता है कि ये जो यंग एज ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पे बहुत अर्ली एज पे बच्चों की पढ़ाई चालू हो जानी चाहिए, विच इज़ चेंजिंग, यू कैन से बहुत फाउंडेशन स्टेज है, वहाँ पे बच्चों को बहुत जल्दी ये सब एक्टिविटी में ले आना चाहिए। दोस्तों इस पर्टिकुलर बात के साथ मुझे लगता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे देश जो भी एडवांस देश है ना, दो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, उन सब जगह पे जहाँ एजुकेशन अच्छा है, सिंगापुर जहाँ एजुकेशन अच्छा है, फिनलैंड जहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, ठीक है, वहाँ पे यंग एज पे, ठीक है, दिस इज एट द वेरी यंग एज, उनके ऊपर बर्डन नहीं होता है, इट इज अननेसेसरी बर्डन ऑन दिस यंग पीपल, ठीक है। हाँ, भारत में ये डिमांड होने लगी है, दिस इज मोर ऑफ यू कैन से कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसकी वजह से ये सिस्टम डेवलप हुई है। नहीं तो अगर इफ यू गो टू स्वीडन, इफ यू गो टू स्विट्जरलैंड एंड देन द चिल्ड्रन आर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ एक्सपोजर टिल ऑफ एजुकेशन टिल दिस पर्टिकुलर, इवन आईबी बोर्ड गोज अगेंस्ट दिस, ठीक है। हालांकि ये बात अलग है कि इंडिया के आईबी बोर्ड की स्कूल्स की कॉमर्शलाइजेशन करना है उनको, तो वो बहुत यंग एज पे बच्चों को ले लेती है, पर आईबी बोर्ड इस बात में नहीं मानता है, ये सुनो। सो ये एक क्रिटिकल एरिया है, मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं है, बट अदरवाइज ये जो ब्रेकअप किया है, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल दोस्तों, है ना। ये जो ये महत्वपूर्ण एक ऐसे फैक्टर है, ठीक है, जहाँ पे ये 9 से 12 साल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें बोर्ड 10वीं का बोर्ड मिलेगा और 12वीं का बोर्ड मिलेगा, क्या होगा, एक ही बोर्ड होगा, क्या होगा, वो तो हमें देखना पड़ेगा। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग और एक ऐसे मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी के नज़रिए से ये सब चीज़ें बहुत काम की है, क्योंकि आप टारगेटेड एरिया पे काम कर पाते हैं। हालांकि पहले भी टारगेटेड एरिया था, ठीक है, पर वो 10 ईयर बोल दिया था, ठीक है, वहाँ पे वो जो प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उसका टारगेटेड एरिया बहुत अच्छा था नहीं। अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया तो एक अच्छी बात है, टारगेट डेवलप होगा, ठीक है, बच्चों के अंदर एक सही एक ऐसे माइंडसेट आपके लिए डेवलप किया जाएगा। सो ओवरऑल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं अपना कमेंट बताना चाहूँ तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भाई भारत में ये ज़रूरत थी कि हमें एक नया विचार तो ज़रूर आए। अब इस नए विचार में हमें इसको अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है और उसमें यंग स्टूडेंट्स लाइक यू शुड ऑल्सो गिव लॉट ऑफ इनपुट। सो मैं आप सब लोगों का एक ओपिनियन लेना चाहता हूं कि आपको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का डिटेल में आपके क्या विचार है ये लिखिए दोस्तों, आपके कमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल दिखेंगे और साथ में अगर उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस चैनल अबाउट दैट, यू कैन से अबाउट दोस कमेंट्स फ्रॉम योर साइड। सो दोस्तों आप ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, ठीक है, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा मकसद था कि हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ना दें कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, वो इन्फॉर्मेशन तो आपको समझ आ ही गई है क्योंकि हमने वो पीपीटी में बना के रखी है आपके लिए, पर साथ में किस नज़रिए से उसको देखना चाहिए था उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सो डू नॉट मिस out to, you can say, click on this bell icon because this bell icon will give you new video update. Okay, thank you very much, and this video will be available on ProTalentDigital.com. Have a great day.